हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं एक्सरसाइज 2A का 9 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1200 पर मंथ हैज़ अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ₹12,440 if the rate of interest is 8% and the interest is calculated at the end of every month. Find the time in month of this recurring deposit account. This is a very important question because here in the questions we have to find out n number of month. So in these questions first of all, exercise 2A question number 9. P is given ₹1200 and maturity value is also given 12,440 rupees. If the rate of interest R is also given 8% per annum and the interest is calculated at the end of every month, find the time. So there is 3 information is given in these questions and we have to find out the n number of month. First of all, I is equal to P n plus 1 into R 2 into 12 into 100. Now P is given 1200 and n is not given. N is not given. R 8. 2 into 12 into 100. 0 से 0, 12 से 12 और 2 से 4. तो 4n plus 1 कैलकुलेट कर लेंगे इसे। 4n स्क्वायर प्लस 4n, इसका मल्टीप्लाई 4n का n में और फिर 4n का 1 में, तो 4n स्क्वायर और 4n 1 दा 4n, तो ये i आ गया 4n स्क्वायर प्लस 4n इक्वेशन फर्स्ट। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू Pn plus I. Maturity value is given in the question 12,440 is equal to P 1200, n is not given, I 4n square plus 4n. Now 1200n and 4n, 1200 4n plus 4n square, तो 1200n and 4n, 1200 4n, 4n square, 12440. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो बहुत ही लार्ज नंबर आ रहे हैं, तो इसको हम देखेंगे कि 4 के मल्टीपल से ये सब हो रहे हैं, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 12440 is equal to 1204n plus 4n square divided by 4 divided by 4 and divided by 4. तो 4 3 दा 12, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 0 is equal to 4 3 दा 12, 4 0 0, 4 1 दा 4n plus 4 से 4 कट n square. Now n square plus 301n minus 3110 is equal to 0. तो अब हम देखेंगे कि 301 यहाँ पर 301
और यहाँ पे देख लेते हैं 4 3 दा 12, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4। तो बस अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो हम देखेंगे कि 301 कितनी टाइम जाएगा इससे, कि इसमें से 310 में से 9 लेस करेंगे तो इसको फैक्टर करेंगे यहाँ पे 301 तो 2 से करेंगे, 2 1 दा 2, 1 इधर गया, 2 5 दा 10, 1 इधर गया तो 2 5 दा 10 और ये 2 5 दा 10। अब 5 से 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5। तो पता चल गया कि 311 10 दा होगा इतना। तो n स्क्वायर प्लस 311n माइनस 10n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग कर लेंगे तो n कॉमन, n प्लस 311 माइनस 10 n माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 311 इज इक्वल टू 0। नाउ n प्लस 311 कॉमन चूँकि सेम है तो n और माइनस 10, n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि n प्लस 3110 एक इक्वेशन n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि इसका आंसर n इज इक्वल टू माइनस 311 आएगा तो रिजेक्ट कर देंगे और n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 10। तो ये आ गए आपके 10 मंथ। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 10, एक्सरसाइज 2A, रफ के लिए कॉलम, क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Gulati has a recurring deposit account of rupees 300 per month if the rate of interest is 12% and the maturity value of this account is rupees 8100. Find the time in years of this recurring deposit account. यहाँ पर भी सेम n पूछ रहा है वो नंबर ऑफ मंथ, तो सेम उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। P is given rupees 300 per month Now the maturity value is also given rupees 8100 and R is equal to 12% per annum. First of all, we have to find the interest in terms of in terms of n. N is not given, n is equal to question mark. I is equal to P n plus 1 R divided by 2 into 12 into 100. Now P is given 300, n is not given, n plus 1, R is given 1200, 2 into 12 into 100. 2 0 से 2 0 कट, 12 से 12 कट, और ये आ गया आपका 3n n plus 1 divided by 2. Now अंदर मल्टीप्लाई 3n square plus 3n divided by 2. Equation first.
I is equal to question mark. Now maturity value is equal to Pn plus I. Maturity value is given 8100 P 300 into N, not given. I 3n square plus 3n divided by 2. Now calculate 8100 into 2 is equal to 300, पहले एलसीएम लेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 600n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही दिया था हमने पहले ही. नाउ 600 और प्लस 3n, 600 3n प्लस 3n स्क्वायर. अब चूंकि नंबर काफ़ी बड़ा है तो 3 से डिवाइड, 3 से काटेंगे. 3 5 द 15, 3 4 द 12, 54, 3 2 द 6, 0 1, 3 से 3 कट, तो n स्क्वायर प्लस 201n और माइनस 5400 इज इक्वल टू 0. अब 201 इंटू कितनी टाइम जाता है, तो यहाँ पर हम 54 को फैक्टर कर लेंगे 2 से. 2 2 द 4, 2 7 द 14, 0, फिर 2 से, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 5 द 10, और फिर 2 से, 2 6 द 12, 2 7 द 14, 2 5 द 10, और फिर 5 से देख लेते हैं, 7 5 12, 12 और 6 18, तो 3 से चला जाएगा. 3 2 द 6, 3 2 द 6, 3 5 द 15, और यहाँ पर अब 5 2 7 2 9, फिर 3 से जा रहा है, तो 3 7 द 21, 3 5 द 15, और यहाँ पे 5 से, फिर 3 से, तो 3 2 द 6, 3 5 द 15, और यहाँ पे इस तरह से आता चला जाएगा. तो हमें ये देखना है कि 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24 8 72, तो यहाँ पे 150, 25 6 द 150, 50 3 2 द 6, 6 2 द 12, 12 2 द 24 नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 200, 200 से भी नहीं आ रहा है. 25 6 द 150, तो 3 3 द 9, 9, तो 25 9 द 225, तो 9 द, फिर उसके बाद देखते हैं 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, तो ये आ गया 201. तो इस तरह से सेटिंग करते हैं. थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था. n स्क्वायर प्लस 225 n माइनस 24n माइनस 54 टू 0. अब 225 का 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 आ जाएगा. तो यहाँ से कॉमन n कॉमन ले लिया, n प्लस 225, और यहाँ से माइनस 24 कॉमन ले लिया, तो n प्लस माइनस 225 इज इक्वल टू 0. तो n प्लस 225 और ये इधर से n माइनस 24 इज इक्वल टू 0. ये रिजेक्ट कर देंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे. n माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 24 मंथ. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2A, और ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन पढ़ते हैं.
Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited rupees 2500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got rupees 67,500. Find the total interest earned by Mr. Gupta, the rate of interest per annum. P is equal to rupees 2500 per month and per month for 2 years. N is equal to 2 years. इसको 2 into 12, 24 month. Now maturity value is given 67,500. Find the total interest earned by Mr. Gupta. So first of all, we have to find the I, P, N plus 1 R divided by 2 into 12 into 100. P is given 2500 and N is given 24 into 25, but R is not given. Divided by 2 into 12 into 100 I. 2 0 से 2 0 कट, 12 to the 24, 2 से 2 कट, 625 R. I is equal to, in terms of R is equal to this. Then maturity value PN plus I. Maturity value given 67500. P 2500 into N 24 plus 625 R. Now calculate 0 0 25 for the 110, 25 to the 50 और ये 60 plus 625 R. 67500. Now R is equal to 625. R is equal to 67,500 minus 60,000. Now इधर कैलकुलेट कर लेते हैं. 625 R is equal to 67,500 में से 60 तो 7,500 rupees. 7,500 rupees. Now R is equal to 7,500 divided by 625. तो 25 the 625, 25 3 the और ये कट जाएगा 25 1 the 25 और यहाँ पे 5 2 the. तो R is equal to 12%. R is equal to 12%. Now the second part, this is the first part. क्वेश्चन का था द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. तो I is equal to था 625 into R. Now 625 into 12. 12 5 the 60. 6 carry. 12 to the 24 और 6 33 कैरी और 12 6 the 72 और 3 हो गया 75. तो इस तरह से इसका इंटरेस्ट भी निकल आया और रेट भी निकल आया. थैंक यू. तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 2A की पूरी कंप्लीट करा दी एक्सरसाइज, और अब मैं नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 2B बताऊंगा. थैंक यू.